Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to discuss with you about the second part of chapter 2, and that is nutrition in animal. In our first part, we have already discussed that there are some components present in our food, and these are known as nutrients. And what is the different ways of taking food, we have already discussed. And digestion in humans, what do you understand by the digestion in human? Means there are six ways for the digestion in human, and that is buccal cavity, means buccal cavities, and food pipe, stomach, a small intestine, large intestine, rectum, anus. These all the six parts taking part in digestion in human. So that we have discussed already in our first part. So today we are going to discuss with you the digestion in human with the particular part है ना that are taking part in the digestion. So first स्टार्ट विद द माउथ और बकल कैविटी. माउथ को ही हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी भी कहते हैं. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. जो फूड होता है वो कहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं? यस, डेफिनेटली फ्रॉम द माउथ. द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इज फूड इनटू. जो फूड को एक्सेप्ट करने की या फूड को खाने की जो प्रोसेस होती है, दिस इज़ नोन एज द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन. इस फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं. इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड, है ना, फ्रॉम थ्रू द माउथ. अपने माउथ या बकल कैविटी के थ्रू फूड को एक्सेप्ट करना, फूड को खाना, दैट इज अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस. उसके बाद हम क्या करते हैं? वी हैव teeth, upper jaws and lower jaws. We have some teeth, so they chew and grind the food and break down that food into a small piece. Each tooth is rooted in a separate socket. Yes, we all know कि हर एक दांत का एक पर्टिकुलर उसका प्लेस होता है गम्स में. सॉकेट मीन्स जैसे हमारे स्विच वगैरह सॉकेट्स होते हैं ना, लाइक द सेम घरों में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर प्लेस होती है, सॉकेट्स होते हैं. लाइक द सेम हमारे टूथ जो होते हैं, हर एक टूथ का गम्स के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेस होता है. अवर टीथ इज़ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. यस, और हर एक टूथ का अपना एक डिफरेंट वर्क होता है और अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट नेम्स में डिवाइड किया जाता है. और आई जस्ट थिंक ऑन योर अर्लियर क्लासेस, मीन ऑन 5th क्लास, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ. वन इज इंसीजर, दैट इंसीजर एंड कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोरल. 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, इन अपर jaws and in lower jaws. Okay. So first, before going to our activity, first see here, I just want to discuss with you about that teeth. Yes, I am told you, there are 5. I told you that there are 4 types of teeth are present. So first are incisor, and these are also known as the cutting or biting teeth. ये हमारे upper jaws and lower jaws में 4 present होते हैं. 4 in upper jaws and 4 in lower jaws. Then beside that, one canine are present here. Means two canines are in lower jaws and 2 in upper jaws, and canines are known as a tearing teeth. Then premolar, beside the canines there are 2 premolar here, one side and another side. So total 4 premolars are present, ठीक है ना, in lower jaws and same in upper jaws. एंड मोलर आर नोन एज अ ग्राइंडिंग टीथ. इनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं. तो ये हमारे लोअर जॉज में भी 3 here and 3 here, means 6 present in lower jaws and 6 present in upper jaws. So total teeth are present in an adult. नंबर आर 32 होते हैं. आप कैलकुलेट कर लीजिए. 4 इंसीजर नीचे, 4 इंसीजर ऊपर, टोटल 8. 2 कैनाइन्स नीचे, 2 कैनाइन्स ऊपर, 4. देन 4 premolar in lower and 4 premolar in upper, and the 6 molar in lower and 6 molar in upper. So total teeth are 32 in counting in an adult. Okay, now come in your second activity 2.2. Wash your hands
look into the mirror and count your teeth. I have already told you about that. They are saying that wash your hands और अपने teeth count करिए with your the heel feel with your use your index finger to feel the teeth, how many kinds of teeth you could find. आपको कितने तरीके के दांत फील हो रहे हैं. फिर आप एक एप्पल लीजिए, उसको बाइट करके देखिए तो कौन से आप टीथ से बाइट कर पा रहे हो, कौन से टेयर कर पा रहे हो, कौन से आप च्यूइंग कर पा रहे हो. जो हमारे प्रीमोलर होते हैं वो च्यूइंग होते हैं और हमारे जो मोलर होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं. ठीक है. सो लाइक दिस इज़ योर एक्टिविटी. यू जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड टच योर टीथ. व्हाट आर यू फीलिंग? ठीक है. विच वन इज piercing, which one is tearing, that I have already explained you about that. So on this 2.2 table you just have to mention that the thing that I have already told you. Then 4 incisors are lower and 4 in upper, then 2 canines are lower and 2 in upper. These all the things you have to mention on your table 2.2. so just do at your home this activity. Now come on this blue box. Yes, first I just want to discuss with you the blue box. Do you remember about the falling of your teeth some years ago? आपको याद है कि आपके दांत किस ईयर में टूटे थे? The first set of the teeth, actually there are 2 sets of the teeth. One is temporary and another one is permanent teeth. So the first teeth grows during the infancy and they fall out at the age of between 6 to 8. तो हमारे जो फर्स्ट सेट होता है वो हमारे बचपन के दांत, जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं और टेम्परेरी टीथ कहते हैं, जो बचपन हम जब बच्चे होते हैं तब ग्रो करते हैं. और ये हमारी बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, 6 से 8 साल के बीच में ये दांत हमारे गिर जाते हैं. दीज आर नोन एज मिल्क टीथ एंड द सेकेंड सेट्स दैट रिप्लेस दैम आर कॉल्ड परमानेंट. उसके बाद जो हमारे दांत निकलते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं वो हमारे सेकेंड सेट होता है. और दैट परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज. और ये कब गिरते हैं? जब या तो हमारी लास्ट एज हो जाती है या जब हम ओल्ड एज होने लगते हैं या फिर कोई डिसीज़ हमें होती है टीथ से रिलेटेड, तब ये दांत जा करके गिरते हैं. ओके. नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. आवर माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स विथ सीक्रेट सलाइवा. हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि सीक्रेट करती हैं सलाइवा को. सलाइवा मीन्स लार. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट. आपको पता है कि सलाइवा का हमारे फूड पर क्या वर्क होता है? चलो हम इसको फाइंड आउट करते हैं. सो हियर दे आर गिविंग योर एक्टिविटी 2.3. इन दिस एक्टिविटी दे हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब्स. लेबल ए. एक टेस्ट ट्यूब ए होगी, एक टेस्ट ट्यूब बी हो गई. इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल बॉइल्ड राइस. इन्होंने क्या किया, एक जो ट्यूब लिए उसमें तो बॉइल्ड राइस ले लिए और दूसरी जो ट्यूब थी उसमें क्या किया इन्होंने, बॉइल्ड राइस तो लिए पर च्यूइंग हमने जो अपनी टीथ से चबाने के बाद, च्यू करने के बाद 3 to 5 मिनट जब हमने च्यू कर लिया वो राइस इन्होंने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में लिया. एट 3 or 4 ml वाटर बोथ ऑफ द. दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या किया इन्होंने, 3 से 4 ml वाटर ऐड कर दिया. देन ऑल्सो पॉर 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. उसके बाद दोनों में ही 2 or 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डाला. ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया इन ईच ट्यूब एंड ऑब्जर्व. अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ट्यूब में क्या होता है. वाई देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब. उनके टेस्ट ट्यूब में कलर में चेंज कैसे हो जाता है? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड टीचर. आप अपनी क्लासमेट के साथ इसके रिजल्ट को डिस्कस करोगे. द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. जो सलाइवा होती है वो जो स्टार्च को शुगर में तोड़ देती है. दैट्स वाई कलर हैज चेंज. इसकी वजह से जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है. कहाँ थे? यस. The tongue is a fleshy muscular organ attached to the back to the floor of the buccal cavity. Buccal cavity means हमारे माउथ से. जो fleshy means एक सॉफ्ट सी मसल्स की ऑर्गन होती है जो कि पीछे की तरफ हमारे मुंह से जुड़ी हुई रहती है. ठीक है. इट इज़ फ्री एट द फॉर्म एंड कैन बी मूव्ड इन. और आगे से क्या होती है, फ्रंट से फ्री रहती है और कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? आपको पता है कि टंग के फंक्शन क्या होते हैं? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग. हम अपनी टंग को टॉकिंग में यूज़ कर सकते हैं. ओके.
We use the tongue for talking. Beside it makes saliva with the food during the chewing and help in the swallowing food. इसके अलावा क्या करता है, जो हमारी टंग होती है वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देती है और हमारे फूड को ईजिली सॉलो करने में, मीन्स निगलने में, अंदर ले जाने में हेल्प करती है. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग. हम फूड को टेस्ट भी अपनी टंग से करते हैं. देयर आर 4 बर्ड्स. इट हैज़ टेस्ट वर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड. येस, यहाँ पर 4 वर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट टेस्ट को बता सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. अब हम जो एक्टिविटी आगे करने वाले हैं एक्टिविटी 2.4 में, उसके थ्रू हम डिफरेंट बर्ड्स हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो इन एक्टिविटी 2.4 आपको क्या करना है, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ऑफ ईच. शुगर सॉल्यूशन बनाइए, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गॉर्ड. ठीक है ना, मीन्स एक खट्टा मीठा, एक तीखा, एक कड़वा, आपने इस तरीके से सॉल्यूशंस बना लिए. Blindfold one of your classmate and ask him to taste out the tongue and keep it straight and flat position. अपने फ्रेंड को कि आइज़ को क्लोज कर दीजिए या फिर उसके बाद उसको बोलिए कि अपनी टंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखे, स्ट्रेट पोजीशन, और फिर टेस्ट करने की बोलिए. यूज़ अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैम्पल्स. और आप एक अच्छे से क्लीन साफ़ सुथरी टूथपिक से सारे सैम्पल्स के पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट पोजीशंस पर टंग पे रखिए. उसके बाद आपका क्लासमेट को पूछिए कि उसको किस जगह स्वीट, किस जगह सॉल्टी, किस जगह सॉर और किस जगह बिटर फील हो रहा है. सो दिस एक्टिविटी यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो. So you just try this activity and then observe what you have observed after doing this test at your home. Now come on your blue box first. Sweet and tooth decay. Sweet and tooth decay क्या होता है actually? Okay. Normally bacteria are present in our mouth but they are not हार्मफुल टू अस. वैसे जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं पर वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो. अगर हम खाना पीना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन नहीं करते हैं तो फिर हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं. these bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम जो भी खाते हैं उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो काफ़ी देर, मतलब हमारी मीन्स जब हम माउथ ठीक से वॉश नहीं करेंगे तो जो खाना होगा उसमें जो शुगर प्रेजेंट होगी तो वो काफ़ी देर से रहने से कुछ एसिड्स रिलीज़ होने लगेंगे. ठीक है, दिस एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. उनसे क्या होगा, हमारे जो दांत होंगे वो डैमेज होने लगते हैं. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. यानी कि अगर हम खाना खाने के बाद अपने माउथ को वॉश नहीं करेंगे तो हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं और फूड पार्टिकल्स के थ्रू कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और उनसे क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स होंगे उसके थ्रू कुछ एसिड्स रिलीज़ हो जाएंगे और ये एसिड्स हमारे टीथ को डैमेज कर देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर हम इसे टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे, इट कॉजेज सीवियर टूथेक. इससे हमारे दांतों में दर्द होगा. इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. इवन हमारे दांत भी टूट जाएंगे. चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. जो चॉकलेट खाने के बाद, स्वीट्स खाने के बाद, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठा कुछ भी खाने के बाद, मतलब ये मेन कारण होते हैं. मेन कल्प्रिट्स मीन्स मेन वो होते हैं सोर्सेज जिनके बाद अगर आपने इनको खाया और उसके बाद आपने अपने माउथ को वॉश नहीं किया तो ये टूथ डिके के लिए सबसे बड़े रीजंस होते हैं. देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश. अगर हम दूसरी तरफ अपने दांतों को ब्रश से क्लीन करते हैं और दांतों और डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है, दोनों दांतों के बीच फंसा करके हम उसको मतलब मूव करते हैं तो उसमें जो भी हमारा दांतों में खाना फंसा होता है वो ट्रैप हो जाता है, उसमें फंस जाता है जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं. ओके, एटलीस्ट फ्लॉश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील. और हमें अपने कम से कम 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और माउथ को हमेशा खाना खाने के बाद धोना चाहिए. ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स
एंड एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन अवर, इसके अलावा हमें कोई भी गंदे हाथ और अनवॉश्ड चीज़ें अपने मुंह के अंदर नहीं डालनी चाहिए. सो हियर वी हैव फॉर दैट टुडे दिस वीडियो इज इनफ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस about the so many things. So you just read this chapter carefully, and if you have doubt, then we will also make a doubt class for you. So like the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.